Good evening, students. So, chaliye, we are going to start with this new topic here. After seeing all the basic concepts in accounting, gaps, that is generally accepted accounting principles, along with all basic concepts, that is what is assets, what is liabilities, what are the various types of assets and what are the various types of liabilities. ये सब देखने के बाद अब तो ये देखना बनता है बेटा, meaning and fundamentals of double entry system of bookkeeping. Now, what is double entry? It's very easy. Double entry is deriving its basic from dual aspect concepts. आपको याद होगा हमने ये कंसेप्ट डिस्कस किया था जिसका नाम था ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. बताइए बेटा क्या कंसेप्ट था ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो हमने गैप में देखा था. द कंसेप्ट वाज, यस, दैट इज करेक्ट. यप, द कंसेप्ट every business transaction will have two impacts in such a way that always total assets is equal to total liabilities. कंसेप्ट ऐसा था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे इंपैक्ट करेगा that always total assets is equal to total liabilities, and another equation we have seen that total assets is equal to capital plus outsiders liabilities. That is what the accounting equation which is coming from dual aspect concept. Now double entry system of bookkeeping जो fundamental है basically account पूरा इस पे निर्भर करता है, तो डबल एंट्री इसी से डिराइव होता है. एंड व्हाट इज डबल एंट्री? वी शुड थैंक दिस मैन, दैट इज you can see Luca di Borgo Pacioli, who has invented double entry system of bookkeeping. Now double entry system of bookkeeping is the method or most scientific method of recording all monetary transaction in the books of accounts. This system owes its origin to Italian merchant Luca di Borgo Pacioli on 10th November 1494. यानी जो डबल एंट्री सिस्टम का ओरिजिन है वो इटली में. इस इंसान को हमने धन्यवाद देना चाहिए, इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग की खोज की. एंड विच सेज दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट. जैसे हम बोलते हैं फॉर ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट दैट एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव two impacts in such a way that always total assets is equal to total liabilities, या total assets is equal to capital plus outsiders liabilities. उसी तरह से डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुककीपिंग क्या बोलता है? For every debit there is an equal and corresponding credit. Hence total of all debits is equal to total of all credits. That is what the fundamental of bookkeeping which is given by this great man, and it is given on 10th of November 1494, that you can see here, and this is the name of the person there, and this day is celebrated as International Accounting Day. तो इसको याद रखिए क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे कब होता है. कब जाने कौन जाने केबीसी खेलना पड़े, है ना, तो पता होना चाहिए. इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे इज नथिंग बट योर 10th November 1494 is your International Accounting Day, which is you can say the birth of double entry system of bookkeeping by an Italian merchant called as Luca di Borgo Pacioli. Now this system of bookkeeping is based on the fact that there are two aspects of every business transaction. इसका बेसिस क्या है बेटा? बेसिस ये है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के अपने दो इंपैक्ट होते हैं, और मैंने तो आपको आगे जाके ये भी बता दिया every business transaction will have two impacts in such a way that always total of all debits is equal to total of all credits, or it is going to impact in such a way that every debit is going to have equal and corresponding credit. वही यहाँ पे दिया है. Every business transaction involves two persons or accounts or parties wherein one is the receiver of the benefit and other one is the giver of the benefit. जब भी कोई ट्रांजैक्शन की बात आती है बिजनेस में तो एक बेनिफिट देने वाला है, दूसरा बेनिफिट लेने वाला है. That is what the basic here it is going to be told. Another one, if something comes into the business, something goes out of the business, and at the same time recording of two aspects of monetary transaction in the books of accounts in terms of debit and credit is called as double entry system of bookkeeping. ये देखिए, so recording of two aspects of monetary transactions in the books of account in terms of debit and credit is called as double entry system of bookkeeping. इन्होंने बहुत सारा दिया है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बुलाऊंगा, और आगे उन्होंने मॉडर्न अप्रोच भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है. बट पहले डबल एंट्री मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए अपने लैंग्वेज में बता देता हूं बेटा. व्हाट इज डबल एंट्री? सो डबल एंट्री इज नथिंग बट every business transaction
every business transaction, you can write down, you need to write down indeed, every business transaction will have impact in such a way that every debit have an equal and corresponding credit. देखिए बेटा, बड़ा आसान है. So every transaction will have two impacts in such a way that for every debit there is an equal and corresponding credit. So every business transaction will have impact in such a way that every debit have an equal and corresponding credit. Hence आगे हम इसी को इलाबरेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं hence total of all debits is equal to total of all credits. Means any business transaction you take, it will have impact in such a way that there will be one account which is debited and another account which is credited by the same amount. Hence total of all debits is equal to total of all credits. Now you may be thinking, is there always only two accounts? Then answer is no. Minimum two accounts are required. For example, जैसे कि अगर आपको एग्रीमेंट बनाना है तो वहां पे दो पार्टी होनी चाहिए, है ना. एक बायर है, दूसरा सेलर है. अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, फ्लैट बेच रहे हो, शेयर बेच रहे हो, तो आप या तो सेलर बनेंगे या तो बायर बनेंगे. देयर हैज टू बी एटलीस्ट टू पार्टीज. तो दो पार्टीज या दो अकाउंट तो मस्ट है. दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. नाउ जब दो से ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली अगेन टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल credits, because every business transaction will have such impact where for every debit there is an equal and corresponding credit. Hence total of all debit is equal to total of all credits. अब डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था. डेबिट और क्रेडिट मैथमेटिक्स या अरिथमेटिक की लैंग्वेज में आप बता सकते हैं, इट इज जस्ट प्लस एंड माइनस. अब नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज इट इज प्लस एंड ऑलवेज इट इज माइनस, बट डू रिमेंबर एज ऑफ नाउ, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके अकाउंट से पैसे आप विड्रॉ करते हैं, एटीएम से विड्रॉ करते हैं, डिजिटल वॉलेट से पे करते हैं, आपको मैसेज आ जाता है योर अकाउंट गेट्स डेबिटेड बाय INR 10,000 एंड सो ऑन. और जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसे डिपॉजिट करता है, आपको मैसेज आता है योर बैंक अकाउंट गेट्स क्रेडिटेड बाय INR. इसका मतलब या तो आपका अकाउंट प्लस हुआ या तो आपका अकाउंट माइनस हुआ. ये कौन बोल रहा है आपको? आपको ये बैंक बोल रही है. बैंक इज टेलिंग दैट योर अकाउंट इज डेबिटेड और अकाउंट इज credited. That way it is happening. So this is what double entry, my dear. You must have written everybody that every business transaction will have such an impact that for every debit there is an equal and corresponding credit. Hence total of all debit is equal to total of all credits. इसलिए total of all debit is equal to total of all credit. याद रखिए. फिर doesn't matter कि वहां पे एक डेबिट है या एक से ज्यादा डेबिट है, एक क्रेडिट है या एक से ज्यादा क्रेडिट है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें. So do remember this and copy it down, because this is the entire soul of this particular double entry or fundamentals of double entry of bookkeeping here. That recording of two aspects of monetary transactions in the books of account in terms of debit and credit is called as double entry. यानी डबल एंट्री का मतलब क्या है? दो एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना, एक है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट. और आगे उन्होंने बताया है दैट for every receiver there has to be a giver. Whenever something comes into the business, something goes out of the business, उनको यहाँ पे बेसिकली अकाउंट्स की कुछ रूल ही बोलने फंडामेंटल, जो आपको अगले पड़ाव पे मैं बताऊंगा. बेसिक अकाउंट्स, वन इज नॉमिनल अकाउंट, सेकेंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड इज पर्सनल अकाउंट. ये क्या होते हैं, इनके रूल क्या है, ये फंडामेंटल है. एब्सोल्युटली वी आर गोइंग टू सी दैट. उसके पहले उन्होंने यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच दिया है जो बड़ा आसान है समझने में. क्यों? क्योंकि approach is divided into these things. You can see according to modern approach every business transaction is concerned with assets, liabilities, capital, expenses and income. Where there is an increase in assets and expenses is debited and decrease in asset and expenses is credited. वैसे ये तो आधी बात हुई.
इसका सीधा साधा मतलब है अगर असेट या एक्सपेंसेस बढ़ रहे उनको हम डेबिट करते हैं और असेट और एक्सपेंसेस घट रहे तो उनको हम क्रेडिट करते हैं एंड दिस इज बाय मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग। आगे उनका इलेबोरेशन उन्होंने नहीं दिया है, मैं इलेबोरेशन आपको बता देता हूं, याद रखिए बेटा। मॉडर्न मेथड बोलता है इंक्रीज इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड, डिक्रीज इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी क्रेडिटेड। उसी के साथ अब ये तो वन फैसेट हुआ, दूसरा क्या बचा बेटा? Yes, that is liabilities, income and gains. So increase in liabilities and income and gains is credited. That is the fundamental rule. And decrease in liability and income and gain is, ऐसे चार रूल है मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग जिसके हिसाब से हम डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। अभी के लिए ये रूल लिख लीजिए बेटा, रूल लिखना जरूरी है। क्या रूल है? पहला रूल हमने क्या देखा? दैट इंक्रीज इन असेट्स, ये देखिए बड़ा आसान है, इंक्रीज इन असेट्स एंड, ये दूसरी चीज है एब्सोल्युटली, हम उसको बस ऐड कर रहे, सो वी कैन इवन राइट इट डाउन सेपरेटली एज वेल। इंक्रीज इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, चाहिए तो मैं ये रब करके आपके लिए अलग से लिख देता हूं। इंक्रीज इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, increase in assets and expenses and losses is what debited। ये क्या किया जाता है बेटा? इनको डेबिट किया जाता है। और अब ये इंक्रीज है तो इंक्रीज को मैं इस तरह का साइन बता सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे डिक्रीज, है ना, डिक्रीज इन असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज credited। These are the rules of modern method of accounting, my dear। इनको क्या बुलाते हैं? Rules of modern method of accounting। So increase in assets and expenses and losses is debited, decrease in assets and expenses and losses is credited। उसी तरह से तीसरा रूल, that is increase in liabilities, increase in liabilities एंड ऑब्वियसली लायबिलिटीज के साथ और किसको हम अटैच करेंगे? एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड इनकम एंड गेन्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड इनकम एंड गेन्स, सेम है, ऊपर एक्सपेंसेस लॉसेस और असेट्स है, नीचे लायबिलिटीज एंड इनकम एंड गेन्स है, तो इसको हम क्या करते हैं? ऑब्वियसली इसको हम करते हैं डेबिट। देखिए तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज एक्सपेंसेस, सॉरी उल्टा हो गया, रूल उल्टा है यहां पे, तो ये होता है इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड इनकम एंड गेन इज क्रेडिटेड, उल्टा रूल है बेटा। और आगे चलेंगे इसको इलैबोरेट करते हुए, दैट इज डिक्रीज इन liabilities and income and gains is credited। अब ये चेंज है एब्सोल्युटली, फिर से यहां पे मैं गड़बड़ कर रहा हूं, तो ये यहां पे हो जाएगा डेबिटेड बेटा। देखिए एग्जैक्टली उल्टे रूल्स हैं और इसको हम क्या बुलाते हैं? रूल्स फॉर मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग। क्या बुलाएंगे? रूल्स फॉर मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग। रूल क्या है बेटा जी? इंक्रीज असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इनकम एंड गेन इज क्रेडिटेड। देखिए उल्टा रूल है, असेट और एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उनको डेबिट किया जाता है बिजनेस में, और अगर लायबिलिटी और इनकम और गेन बढ़ रहा है तो उनको क्रेडिट। अब ऐसा क्यों? इसका कोई रीजन नहीं है, जैसे कि 0 इस तरह से क्यों दिखता है, 1 2 3 इस तरह से क्यों दिखता है, फंडामेंटल अजम्पशन है ये सब्जेक्ट के। ये मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग के अजम्पशन है कि इंक्रीज इन असेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड, अलोंग विद दैट इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड इनकम एंड गेन इज क्रेडिटेड, जबकि decrease in assets and expenses and losses is credited and
डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इनकम एंड गेन इज डेबिटेड, यानी एग्जैक्टली उल्टा है। तो दो ग्रुप बना दिए उन्होंने सीधा सीधा। पहला ग्रुप है असेट्स का और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का, दूसरा ग्रुप है बेटा लायबिलिटीज और इनकम और गेन्स का। तो ये दोनों को अलग अलग इसमें डाल दिया है। तो असेट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का एक ही रूल है, इनकम एंड गेन लायबिलिटी एक ही रूल है, और इसको नाम दिया गया है मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग। आप बोलेंगे ट्रेडिशनल क्या है, वो हम देखने ही वाले। पहले आप ये कॉपी कर लीजिए और इसको हेडिंग दे दीजिए बेटा, मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग और मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यू कैन जस्ट गिव द हेडिंग दैट मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज द हेडिंग? दैट इज मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। राइट इट डाउन, चारों रूल लिख लीजिए बेटा, सबने लिखना है। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज entirely dependent on classification of the accounts. अकाउंट किस में क्लासिफाई होगा? या तो अकाउंट असेट होगा, या तो एक्सपेंसेस एंड लॉस होगा, या तो अकाउंट लायबिलिटी होगा, या फिर इनकम और गेन होगा। तो असेट एंड एक्सपेंसेस और लॉसेस को एक कैटेगरी में डाल दिया, और दूसरी तरफ हमने कहां पे डाल दिया बेटा? इनकम और गेन और लायबिलिटी को दूसरी कैटेगरी में डाल। तो इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके हमने बता दिया कि इंक्रीज इन असेट्स अलॉन्ग विद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिटेड, एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड इनकम एंड गेन इज क्रेडिटेड, whereas decrease in assets and expenses and losses is credited, and decrease in liability and income and gain is debited. तो exactly opposite रूल है जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये रूल लिख लेने चाहिए। आई होप यू आर written everybody, copy it down quickly, जल्दी लिखिए बेटा, so that we can move ahead. Do let me know if you are having any doubt. चलिए आगे चलते हैं एंड लेट्स सी द फर्दर पार्ट। सो दीज आर मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ट्रेडिशनल अभी भी देखने बाकी है, ऑब्वियसली वो भी देखेंगे हम। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बोला जाता है यहां पे। नाउ सी, हियर इज अ चार्ट विच इज शोइंग यू मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। चार्ट बता रहा है आपको कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दो तरह से रिकॉर्ड की जाती है। पहली सिस्टम है इंडियन सिस्टम और दूसरी इंग्लिश है। इंडियन सिस्टम मतलब बुक्स ऑफ, वही खाता बोलते हैं। जब दिवाली टू दिवाली आपको पता है वही खाते की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती, लक्ष्मी और गणेश जी का उसमें फोटो का हम पूजा करते हैं। उसमें हम अपना हिसाब लिखते हैं कि पैसा आया कितना, गया कितना, किससे आना बाकी है, किसको देना बाकी है। सो दैट इज व्हाट इंडियन सिस्टम, जो आप उसको बुला सकते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम है। बट as far as big businesses are concerned, those are not following the traditional system. Those are following the English system, which is further divided into two parts. One is English system and another is, one is English system. First one is single entry system and second is double entry system. तो English system दो चीजों में डिवाइड की है, एक सिंगल एंट्री और दूसरी डबल एंट्री। अब सिंगल एंट्री क्या होती है? सिंगल एंट्री ओनली कैश अकाउंट, यानी ये सारा कैश में ही कंसिडर करते हैं as far as single entry is concerned, and it considers only name of the party like personal accounts. जैसे हम बोलते हैं कि my account, that is Deepak account, say it is Sharma account, Verma account, Geeta account, Sita account, Ram account, Shyam account, Krishna account, ये क्या सारे, ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट मींस नेम ऑफ द पार्टी और पर्सन। सो सिंगल एंट्री का प्रॉब्लम ये है, सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जस्ट हमने अभी क्लासिफिकेशन देखा था, आपको याद होगा क्लासिफिकेशन हमने देखा कि बिजनेस में क्या क्या होता है। बिजनेस में होता है असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स एंड लायबिलिटी। तो ऐसे देखा जाए तो चार चीजें हैं वाइडली डिवाइड करके। तो ये क्या देख रहा है? सिंगल एंट्री सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट देख रहा है,
या फिर उसके साथ पर्सनल अकाउंट देख रहा है, विच इज नॉट यूजफुल, विच इज नॉट साइंटिफिक, बिकॉज इट इज नॉट कंसिडरिंग assets, it is not considering expenses and losses, it is not considering income and gains, and it is not considering liabilities, because it is considering only personal accounts, means of the parties and cash account. इसलिए ये साइंटिफिक सिस्टम नहीं है. तो साइंटिफिक सिस्टम क्या है? साइंटिफिक सिस्टम डबल एंट्री है. तो इंडियन सिस्टम यहां पे दी है जो आप पढ़ सकते हैं. जैसे मैंने आपको बोला, ट्रेडिशनली वही खाता जो हम मेंटेन करते हैं, दिवाली टू दिवाली हम लाते हैं यूजुअली. मैंने जैसे आपको बोला कि भगवान गणेश जी, उनके साथ मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का फोटो होता है, जिनकी हम बड़ी पूजा करते हैं दिवाली के दिनों में, और वही खाता वहां से हम शुरू करते हैं. तो दिवाली टू दिवाली मेंटेन करते हैं. एडिशनल सिस्टम है जो बिजनेसेस फॉलो नहीं करते, बिग बिजनेसेस फॉलो नहीं करते. बिग बिजनेसेस फॉलो करते हैं इंग्लिश सिस्टम, और उसमें भी डबल एंट्री. सिंगल एंट्री वो फॉलो नहीं करते, बिकॉज सिंगल एंट्री यू कैन सी दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स. तो यही प्रॉब्लम है. मतलब ये सिर्फ कैश बुक और पर्सनल अकाउंट कंसिडर करती है, और कोई ये कंसिडर करता ही नहीं. मतलब इट इज अनसाइंटिफिक मेथड एंड आल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम, बिकॉज इट चेंजेस विद द कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन. ये साइंटिफिक है ही नहीं. क्यों? बिकॉज इट डजंट रिकॉर्ड एक्सेप्ट कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स. कैश बुक और पर्सनल अकाउंट छोड़ा तो ये कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करता, इसलिए ये अनसाइंटिफिक है. मतलब ये क्या क्या रिकॉर्ड नहीं करता? ये असेट रिकॉर्ड नहीं करता, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिकॉर्ड नहीं करता, इनकम एंड गेन रिकॉर्ड नहीं करता, और लायबिलिटी भी रिकॉर्ड नहीं करता. मतलब ये रिकॉर्ड क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट. इसलिए अनसाइंटिफिक है. दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डजंट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, एंड इट इज सुटेबल फॉर ओनली स्मॉल बिजनेस. इसलिए ये साइंटिफिक नहीं है, और ये यूज नहीं की जाती, और ये बिजनेसेस को सुटेबल भी नहीं है. तो सुटेबल क्या है? सुटेबल है डबल एंट्री सिस्टम. एंड व्हाट इज डबल एंट्री? डबल एंट्री का बस ये बॉक्स देखिए बेटा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था. एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. सो डबल एंट्री का बेसिक प्रिंसिपल क्या है बेटा? दैट इज एवरी debit has an equal and corresponding credit of the same amount. Hence, total of all debits is equal to total of all credits. इसीलिए जब भी आप बोलेंगे कि डेबिट का टोटल क्रेडिट के साथ ऑटोमेटिकली मैच होता है, this happens just because of following double entry system of bookkeeping, which says that every debit has an equal and corresponding credit of the same amount. हर जो डेबिट है उसके लिए इक्वल और करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है सेम अमाउंट का. ये बेसिक प्रिंसिपल है किसका? डबल एंट्री का. एंड दैट इज हाउ, यहीं पे हम लिख सकते हैं, हेंस टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स. ये इसी की वजह से होता है बेटा. टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट. टोटल ऑफ ऑल डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स. दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ application of double entry system of bookkeeping. आगे दिया है डबल एंट्री क्या है. डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड of recording of business transaction in the books of accounts. Under the system, double or twofold effect of such transaction is recorded. Each transaction is recorded, डबल और टू फोल्ड इफेक्ट, यानी हर ट्रांजैक्शन का मिनिमम 2 इफेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है डबल एंट्री में, इसलिए इसको डबल एंट्री बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री bookkeeping system, one account is to be debited and another account is to be credited with equal amount. This matters a lot. एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन सिमिलर अमाउंट से. हेंस टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स. इसी की वजह से साइंटिफिकली एवरीवेयर, यूनिवर्सली, वर्ल्ड वाइड वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. इंडियन सिस्टम अपन फॉलो नहीं करते क्योंकि वही खाता है सिर्फ. दूसरा, इंग्लिश सिस्टम में पहला वाला सिंगल एंट्री, उसमें सिर्फ कैश बुक और पर्सनल अकाउंट ही रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें क्रेडिट का कोई लेना देना नहीं है, जिसमें लायबिलिटीज, इनकम एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश आर नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड. हेंस ओनली डबल एंट्री सिस्टम इज most scientific, accurate and the system of which is worldwide and universally used. इसलिए डबल एंट्री यूज होती है. अब ये जो डबल एंट्री में मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखा के दिया था, उसमें ये भी ऐड करना बेटा, जो उन्होंने यहाँ पे
ये स्क्वायर में दे के रखा है, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. सो डबल एंट्री का बेसिक प्रिंसिपल क्या है माय डियर? दैट एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट. ये डबल एंट्री का प्रिंसिपल है जो आप यहां पे देख सकते हैं. बताइए, सिंगल एंट्री में कोई डाउट है? डबल एंट्री में कोई डाउट है? इंडियन सिस्टम, वैसे डबल एंट्री किसने इन्वेंट किया और उसका क्या यूसेज है? आई होप एवरीबडी इज गेटिंग दिस वन, राइट? चलिए आगे चलते हैं. व्हाट इज गिवन हियर? तो हम इसके बाद फॉलो क्या करेंगे? डबल एंट्री. क्यों फॉलो करेंगे? अब उन्होंने बहुत सारा उसके बारे में दे रखा है, दैट वी ऑल कैन सी दैट हाउ इट इज हेल्पफुल. जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाना चाहिए. तो यहां पे देखिए, पहले 1 देखते हैं, ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है बेटा जी? सबसे पहले, हर ट्रांजैक्शन का ड्यूअल एस्पेक्ट होगा, ड्यूअल इफेक्ट होगा. मतलब एक डेबिट दूसरा क्रेडिट विथ सेम अमाउंट. एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो भी सेम अमाउंट से, तो उसको हम डबल एंट्री बुलाएंगे. सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. ये ड्यूअल एस्पेक्ट का या ड्यूअल इफेक्ट का हम रिकॉर्ड कहां पे करेंगे? तो हम इसको ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करेंगे इन टर्म्स ऑफ जर्नल. थर्ड, पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर. जर्नल से जाएगा ये अगले लेजर में, लेजर से जाएगा, इसका बैलेंस हो जाएगा, मतलब टोटल करेंगे हम. टोटल करने के बाद विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस और आखिरी में हम प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट्स. अभी के लिए इसको भूल जाओ कि ये क्या है, बिकॉज 1 by 1 हम ये पूरी प्रोसेस देखेंगे. इसको क्या बुलाते हैं स्टूडेंट्स? अकाउंटिंग प्रोसेस. सो व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस? अकाउंटिंग प्रोसेस इज नथिंग बट फर्स्ट इज ट्रांजैक्शंस. जैसे कि आपने खरीदा, बेचा, पे किया, रिसीव किया, है ना? तो ये ट्रांजैक्शंस होते हैं. ये ट्रांजैक्शन आप कहां पे रिकॉर्ड करते हो बेटा? दीज आर रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिनको बिजनेस क्या बुलाता है? जर्नल एंट्रीज. ये जर्नल से हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं? लेजर अकाउंट्स. ये फिर से हम समझाएंगे जब पूरा ये खत्म हो जाएगा. लेजर के बाद हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, क्योंकि लेजर से हम क्या बनाते हैं? बैलेंस ऑफ वेरियस अकाउंट्स, असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन. और फाइनली इससे हम क्या बनाते हैं? इससे बनाते हैं हम फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वैसे आपको पता है कि हम फाइनल अकाउंट्स में क्या बनाते हैं बेटा? बताइए. यस, दैट इज करेक्ट. इनकम स्टेटमेंट और कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड अनदर वन इज बैलेंस शीट. तो ये कुछ आपके बेसिक चीजें हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में. तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो सबसे पहले बिजनेस में क्या होता है? ट्रांजैक्शंस होते हैं माय डियर. ट्रांजैक्शंस के बाद क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस के बाद होते हैं एंट्रीज इन टर्म्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, जिनको हम क्या बुलाते हैं? जर्नल एंट्रीज. जर्नल पे हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम बुलाते हैं लेजर अकाउंट्स, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. लेजर के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस. सॉरी, इट इज ट्रायल अकाउंट्स आर रिटन, इट इज बेसिकली कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस इज द नेक्स्ट थिंग. और ट्रायल बैलेंस पे हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके लिए हम पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं. एंड व्हाट फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनल अकाउंट्स डज? फाइनल अकाउंट्स कन्वे द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस to all interested parties in the business in terms of profit and loss account and in terms of balance sheet. ये P&L और बैलेंस शीट के फॉर्म में सबको बताता है कि बिजनेस के रिजल्ट क्या है. That is how accounting is known as language of the business. इसी तरह से अकाउंटिंग को हम क्या बुलाते हैं बेटा? लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. देख सकते हैं आप, सबसे पहले ट्रांजैक्शन, उसके बाद जर्नल, फिर लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट्स. प्लीज राइट डाउन दिस फ्लो. और इसको हम क्या बुलाएंगे बेटा जी? दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रोसेस. हम इसको बुलाते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस. तो इसको लिखिए अकाउंटिंग प्रोसेस. हम ये सारा देखने वाले हैं, अभी के लिए बस समझ लीजिए ये अकाउंटिंग प्रोसेस है. 1 by 1 आएगा. ट्रांजैक्शंस हमें पता है. ट्रांजैक्शंस आर नथिंग बट एवरी बिजनेस एक्टिविटी विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, लाइक परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ सैलरीज, वेजेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस एंड सो ऑन. अलॉन्ग विद दैट, क्यों ये खर्चा किया, क्यों प्रोडक्ट बनाया,
because we want to sell it and we are going to get revenue same, that is sale of goods and services, interest received, dividend received, commission received. तो ये सारा आपका इनकम और गेन रहेगा. इस तरह से ये सारे ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड जर्नल में, उसके बाद उससे बनाते हैं लेजर, लेजर से बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट. सो दिस इज व्हाट द फ्लो ऑफ थिंग्स एज फार एज अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमें देखना है वन बाय वन. अभी के लिए तो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या देखे बेटा, सिर्फ और सिर्फ हमने देखे हैं ट्रांजैक्शन. तो बाद में देखेंगे. कंप्लीट किया राइटिंग स्टूडेंट्स? यस एवरीबडी. राजवीर, शीतल, पूनम, हर्ष, एवरीबडी हैज रिटन? ओके गुड. ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट प्लीज? यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं कोई डाउट है तो जरूर आप यूट्यूब चैट बॉक्स में पोस्ट कीजिए बेटा, या पर्सनली आप मैसेज भी कर सकते हैं. आफ्टर द क्लास आई विल श्योरली आंसर. चैट बॉक्स में करेंगे तो अभी करो, और आप मैसेज करेंगे मुझे तो वो तो क्लास के खत्म होने के बाद ही होगा. चलिए आगे चलते हैं एंड लेट्स सी नाउ व्हाट इज गिवन हियर. अब यहां पे ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया. अब देखते हैं डबल एंट्री का मतलब क्या है. डबल एंट्री को थोड़ा इलाबरेट किया उन्होंने. डबल एंट्री का मतलब क्या है, डबल एंट्री वैसे होती क्या है. ये सेम है, दैट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज अ टू फोल्ड इफेक्ट. तो व्हाट इज डबल एंट्री? डेफिनेशन डबल एंट्री का क्या है. हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का कैसे इफेक्ट रहेगा बेटा? टू फोल्ड इफेक्ट रहेगा. टू फोल्ड मतलब एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट विथ इक्वल अमाउंट, सो दैट टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स. एक डेबिट रहेगा दूसरा क्रेडिट रहेगा, टोटल करेंगे टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट रहेगा. देख सकते हैं आप. एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज अ टू फोल्ड इफेक्ट एंड that it affects two accounts in opposite direction. Every business transaction has twofold effect and it affects two accounts in opposite direction. मतलब एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट. And if a complete record is to be made of each such transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account. Complete record अगर बनाना है तो एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा, वो भी सेम अमाउंट के साथ. मतलब टोटल ऑफ ऑल डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट. इसमें तो कोई दो राय है नहीं. इट इज द टू-फोल्ड इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन दैट हैज गिवन राइज टू टर्म डबल एंट्री. तो ये इस तरह से इंपैक्ट करेगा कि ये आपको सीधा बताएगा कि वहां पे डबल एंट्री या इसका ड्यूअल इफेक्ट है. किसका? फॉर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, दैट टू for every debit there is an equal and corresponding credit in opposite direction. मतलब एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट. अब प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री देखते हैं क्या है. In every business transaction there must be minimum two effect, that is debit and credit. हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के कम से कम दो इफेक्ट होनी चाहिए, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट. एक से ज्यादा चलेंगे, सॉरी दो से ज्यादा चलेंगे, मतलब दो से ज्यादा चलेंगे तो हो सकता है एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो, बट अल्टीमेटली टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स. ये देखेंगे कैसे होता है. टू अकाउंट्स मींस वन इज रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, अनदर गिवर ऑफ द बेनिफिट. थर्ड, इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड ऑब्वियसली अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड. एंड लास्ट, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट. हर डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से इफेक्ट होंगे. देखिए, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट. हर डेबिट का उतना ही क्रेडिट रहेगा और वो भी सेम अमाउंट का रहेगा, इसलिए टोटल ऑफ ऑल डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट. दिस इज व्हाट माय डियर, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. एडवांटेज कंप्लीट बनेगा because for every debit there is equal and corresponding credit, hence total of all debit is equal to total of all credit. यानी कोई इफेक्ट बचेगा ही नहीं, तो कोई मिस्टेक होने का चांस है ही नहीं, क्योंकि हर डेबिट को वहां पे क्रेडिट है, रिसीवर को गिवर है. डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस. कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है उसी टाइम से है. तो ऑब्वियसली इट इज लीडिंग टू एक्यूरेसी. सो कंप्लीट रिकॉर्ड अंडर दिस सिस्टम ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. तो ये सिस्टम के अंदर सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं. दिस मेथड इज साइंटिफिक एंड रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन. ये एकदम साइंटिफिक मेथड है और हर ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट ये रिकॉर्ड करती है, डेबिट भी करती है और
क्रेडिट भी करती है। आगे एक्यूरेसी, इन दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सो इट गिव्स कंप्लीट एक्यूरेसी इन अकाउंटिंग वर्क। ये क्या प्रोवाइड करती है, आप दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं इन दिस सिस्टम, क्या बोथ एस्पेक्ट्स आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो इट गिव्स कंप्लीट एक्यूरेसी इन द अकाउंटिंग वर्क। इट आल्सो चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ये आगे क्या चेक करती है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करती है। कैसे, टोटल ऑफ ऑल डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स आ गया, मतलब अरिथमेटिकल एक्यूरेट है, एज सिंपल एज दैट। तीसरा बिजनेस रिजल्ट्स, जैसे कि सारा क्लासिफिकेशन आपने रिकॉर्ड कर लिया। क्लासिफिकेशन है ही क्या बेटा जी, बेसिकली that is all assets, expenses and losses, liabilities and then income and gains. So देख सकते हैं आप, all expenses, losses, income, gains, liabilities, assets, debtors, creditors, all these transactions are recorded. Therefore it helps to find out accurate business results of particular accounting period. ये सारा रिकॉर्ड करने की वजह से आपको ये accurate business transaction या business result बता देगा वहां पे। And last but not least, common acceptance. It is having common acceptance, which says that it is widely accepted since it follows universal accounting principle, that is double entry system is accepted by financial institutions, government authorities, etc. Rather मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला ये universally accepted accounting method है। What is that? That is double entry system of bookkeeping. So I hope you are getting and concentrate on this, that what it says entirely. ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। Every business transaction has a twofold effect, and that it affects in such a way that, or that it affects in two accounts in opposite directions. And if a complete record is to be made of each such transaction, would be necessary to debit one account and credit another account. It is the recording of twofold effect of every transaction that has given rise to the double entry, that has given rise the term double entry. ये इस तरह से इंपैक्ट करेगा कि आपको डबल एंट्री आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर डेबिट का वहां पे इक्वल और करस्पॉन्डिंग क्रेडिट है, और यहां पे उसके प्रिंसिपल उन्होंने दिए जो बड़े आसान है कि देयर हैज टू अकाउंट debited, another should be credited. Two account means one is receiver and another is giver of benefit. If one account is debited, obviously other one is credited, and every debit has equal and corresponding credit of the same amount. प्रिंसिपल है डबल एंट्री के। तो ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट था। एवरीबडी इज गेटिंग डबल एंट्री। बताइए बेटा, कोई डाउट है? गेटिंग एवरीबडी? चलिए आगे चलते हैं। गुड। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे आ रहा है जिसपे पूरा अकाउंट बेस करता है। ये देखिए ट्रेडिशनल है। आपको थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि सर मॉडर्न बता रहे, ट्रेडिशनल क्या है, तो आ गया ट्रेडिशनल। ये देखिए, बोलते हैं ना टाइम की बात है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखा कि अपने आप सारी चीजें सामने आ जाती है। जस्ट फॉर सर्टन थिंग्स वी जस्ट नीड टू गिव टाइम, वो अपने आप सामने आ जाती है। बोलते हैं समय सारी सच्चाई उजागर कर देता है, उसी तरह से है। दैट समय यहां पे आपको बता रहा है कि ट्रेडिशनल मेथड क्या है। कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम, दैट इज ट्रेडिशनल क्या है, हम देखते हैं अभी कि कन्वेंशनल में क्या है। बड़ा आसान है। कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकेबिलिटी। ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है ये प्रैक्टिकेबिलिटी पे बेस्ड है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली। अकाउंटिंग कन्वेंशन मींस रूल्स व्हिच बाय कॉमन एग्रीमेंट आर यूज्ड इन अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब क्या है? ये रूल्स है जो बाय कॉमन एग्रीमेंट से यूज होते हैं। हाउएवर देयर इज नो क्लियर इंफॉर्मेशन ऑफ रूल्स बिटवीन कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। कंसेप्ट और कन्वेंशन में ऐसा कोई क्लैरिटी या चेंज या डिफरेंशिएशन नहीं दिया है। इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज द एग्जांपल ऑफ कन्वेंशन अकाउंटिंग। सो इंडियन सिस्टम जो है बेटा वो कन्वेंशनल अकाउंटिंग का एग्जांपल है। This system doesn't follow principle of double entry system. It is incomplete system of recording the business transaction. तो ये जो कन्वेंशनल सिस्टम है ये इनकम्प्लीट है, ऐसा इनका बोलना है, जैसे वही खाता हम बुलाते हैं। लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के साथ चले जाए, पूरे रूल्स अप्लाई करें ट्रेडिशनल के, तो ये भी बड़ी लॉजिकल है, भले ट्रेडिशनल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। Both the things output is one and the same. Let's see the classification of accounts, my dear. Very important. जैसे अकाउंट क्या? अकाउंट इज नथिंग
you can say that the summary of transaction related to an asset, a liability, expenses and loss, income and gain. जैसे अगर मुझे जानना है कि मेरे पास कैश एट द एंड ऑफ द डे, कैश इन हैंड कितना है, तो मैं क्या बात करूंगा, कितना कैश आया, कितना कैश गया, और दोनों को एक दूसरे से माइनस करूंगा. अगर मेरे पास 20,000 थे, खर्च 10,000 हुए, तो 20 माइनस 10, मेरे पास 10 बचे. और मेरे पास 20,000 थे, मैंने 40,000 खर्च किए. अब बोलेंगे 20 रहने के बाद 40 कैसे खर्च कर सकते हैं? कैश में नहीं कर सकते, बैंक में कर सकते हैं. मतलब 20,000 का मैंने लोन लिया है. कैश अकाउंट ऑब्वियसली यू कैन से दैट जितना है उतना ही खर्च किया जा सकता है. अकाउंट में जरूरत नहीं है. बैंक अकाउंट, दैट इज हाउ इट इज ऑलवेज सेड दैट बैंक अकाउंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी. मतलब डेबिट हुआ तो आपका पैसा, क्रेडिट हुआ तो आपने बैंक से लोन लेके रखा है. दैट इज हाउ इट इज सेड कि बैंक में अगर आपके पास है 20,000 और आपने खर्च किए 40,000, इसका मतलब आपने और 20,000 का बैंक से लोन लिया है. कैश में अव्वल ऐसे होता नहीं. कैश में क्यों नहीं होता? जितनी कैश है उतनी खर्च कर सकते हैं. अगर आपके पास कैश ही 5,000 है तो खर्च भी 5,000 कर सकते हैं. सो ये कैश में पॉसिबल नहीं है, बैंक में पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि बैंक से आप लोन ले सकते हैं. कैश में कहां से लोन लेंगे, है ना? क्योंकि आपका कैश बैलेंस है, कैश इन हैंड है, तो जितना कैश आपके पास है उतना ही खर्च कर सकते हैं आप. एज सिंपल एज दैट. सो मीनिंग ऑफ अकाउंट देखते हैं बेटा. एन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, रिलेटिंग टू asset, liability, particular head of expense, और इनकम रिकॉर्डेड एट वन प्लेस. ये देखिए, ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है अकाउंट की. अकाउंट क्या है? एक समराइज्ड रिकॉर्ड है. जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि आप जानना चाहते हैं बैंक बैलेंस आपका एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है, तो कितना पैसा बैंक में आया, कितना पैसा आपने बैंक के थ्रू पे किया, जितना आया और जितना पे किया दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. अगर आपके पास आया ज्यादा है, पे किया उससे, तो वहां पे पॉजिटिव बैलेंस रहेगा. और आपके पास आया, पे किया है लोन लेके एब्सोल्युटली, तो आपका क्रेडिट बैलेंस रहेगा. बिकॉज आपने खर्च ज्यादा किया है, वो आपने लोन लेके किया है. इस तरह से अभी ये डेबिट क्रेडिट पे ध्यान मत दीजिए, हो जाएगा. जैसे ही कंसेप्ट आएंगे तो क्लियर हो जाएगा. अभी जरूर ये अकाउंट का डेफिनेशन लिखिए बेटा. एन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ व्हाट? एन एसेट, अ लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड लॉस, इनकम एंड गेन. क्यों? सो दैट यू कैन हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट. और आपको पता चले अकाउंट देखने के बाद कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है ना? इनकम है तो उसमें है क्या, कितना पैसा है, how much is the income, expenses and loss कितना है. Same way we are going to prepare each and every account. Account is a summarized record of all transaction related to an asset, a liability, expenses and loss, income and gain, and that too recorded at one place. कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, पूरा बैंक में रिकॉर्ड करेंगे. प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, हर एक का अपना अपना अलग अलग अकाउंट बनेगा ताकि उसका बैलेंस समझ में आ जाए. उसी तरह से एंड लॉस, इनकम एंड गेन के भी अलग अकाउंट बनाएंगे. जैसे कि सैलरीज, वेजेस, इंटरनेट चार्जेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस एंड सो ऑन व्हाट नॉट. ऐसे अलग अलग अकाउंट बनाएंगे और उसका बैलेंस हम ढूंढेंगे कि आखिरी में क्या पिक्चर है, उसमें कौन सा बैलेंस है, उसमें आया, खर्च किया, आपके पास रिसीव हुए वाला ज्यादा है या आपने पे किया वो ज्यादा है. अकाउंट टू अकाउंट इट विल डिफर. सो अकाउंट का डेफिनेशन लिख लिया. यस, वेरी गुड. आगे देखिए क्या दिया. इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस. हमें पता है बिजनेस में हजारों लाखों ट्रांजैक्शन होते हैं दिन के. तो हमें अगर जानना है कि कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, डेटर्स आना कितना है, क्रेडिटर को देना कितना है, अलग अलग डेटर्स है. देयर आर थाउजेंड ऑफ डेटर्स यानी कस्टमर्स को हम क्रेडिट पे बेचते हैं, मिलियंस ऑफ सप्लायर्स जिनसे हम खरीदते हैं. तो हमें यह जानना है कि उनको, ये भी जानना है कि उनसे कितना आना बाकी है. ये अगर जानना है तो ऑब्वियसली हमें क्या देखना पड़ेगा, उसका इंडिविजुअल अकाउंट दिखना पड़ेगा. और ये इंडिविजुअल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे हम, एक तरफ ऑब्वियसली उसको पे किए वाला और एक तरफ से उससे
रिसीव किए वाला। सो ऑब्वियसली दो साइड रहेंगी। जैसे कि मैं अगर कैश बैलेंस की बात करूं तो बिजनेस में आया कितना और खर्च हुआ कितना। बैंक बैलेंस सेम, बैंक के थ्रू पैसा आया कितना और बैंक के थ्रू पे किया कितना। डेटर्स, आपने उसको कितना सेल किया, उसने कितना पैसा दिया, कितना देना बाकी है। क्रेडिटर्स, आपने सामने वाले से कितना खरीदा, कितना पैसा दिया, कितना और देना बाकी है ना। उसी तरह से लोन, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, कि आपने लोन कितना उठाया, उसमें से कितना पे किया, कितना पे करना बाकी है। दिस इज व्हाट द पोजीशन ऑफ वेरियस अकाउंट्स माय डियर इन टर्म्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में कितना आपने खर्च किया, कितना आपने रिसीव किया। एक्सपेंसेस रहेंगे तो कितना खर्च किया, इनकम रहेंगे तो कितना रिसीव किया। लॉसेस फोर्सिबल है आप पे, कस्टमर डुबा किया, बैड डेट्स अकाउंट है ना, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो ये सारे लॉसेस अकाउंट है। और गेन क्या होता है, रिसीव्ड इनकम अपार्ट फ्रॉम योर रूटीन बिजनेस एक्टिविटी, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज छोड़ के, जिसके लिए बिजनेस चालू किया था वो छोड़ के और क्या इनकम आपको मिल रहा है, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, तो ये सारे आपके क्या है बेटा, ये आपके सारे अदर इनकम है। तो ये इनकम, और जब हम इनकम बोलते हैं तो दैट इज कोर इनकम, बाकी को अदर इनकम आप बुला सकते हैं। सो दैट इज व्हाट द बाइफिकेशन देयर। सो इस तरह से बनेगा। So you can see in day-to-day business activity, large number of business transaction takes place. It affects several accounts. और ये several accounts क्या रहेंगे, कुछ assets है, कुछ liabilities है, कुछ expenses and losses है, कुछ income और gains है। तो आगे क्या, at the end of certain period of time, it is necessary for the businessman to balance the accounts. ये सारे account balance करने, to find out the information like how much is capital, are the total liabilities, total assets, total income, total expenses, total losses, etc. of the business, so that we can find out the financial position of the business in terms of profit and loss account and in terms of balance sheet, that is various liabilities as on a। तो ये हमें सारा जानना है, इसलिए हम अकाउंट बनाते हैं। यही ये उन्होंने दिया है डेफिनेशन ऑफ अकाउंट। फिर से आप देखिए, जी.आर. बटलर का डेफिनेशन बोलता है, एन अकाउंट इज summarized record of transactions affecting one person, one kind of property, that is an asset, or one class of gain or loss. So an account is a summarized record. ये summarized record है, ये कोई deny नहीं कर सकता। किसका है, किसी asset का, किसी liability का, किसी income का, किसी expenses का, किसी loss का, या किसी gain का। इस तरह से ये क्या है बेटा, account है। आगे क्या दिया है, an account is a ledger record in a summarized form of all transactions that have taken place with that particular person or thing specified given by Carter। तो यही डेफिनेशन है। अकाउंट क्या है, summary, it is a summarized record of all business transactions related to that particular head। जैसे कि असेट है तो असेट का, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का, एक्सपेंसेस है तो उसका, इनकम एंड गेन है तो उसका। इस तरह से ये सारी चीजें हम अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और अभी देखते हैं यहां पे टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है। आप चार्ट देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, इंपॉर्टेंट चार्ट है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, नॉर्मल क्लासिफिकेशन इज इनटू टू अकाउंट्स, वन इज पर्सनल, अनदर इज इम्पर्सनल। बेसिक जो क्लासिफिकेशन है तो पहला है पर्सनल और दूसरा है इम्पर्सनल। पर्सनल फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सॉरी, personal is divided into three parts. Number one is natural personal account, second is artificial personal account, and third is representative personal account. So तीन यहां पे है उन्होंने, पहला नेचुरल पर्सनल, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब आप देख सकते हैं ये जो पर्सनल अकाउंट है, दीज आर नथिंग बट पार्टीज, मतलब नेचुरल पर्सन, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, है ना, मैं, आप, ये सारे नेचुरल पर्सन हैं। आप बोलेंगे हम नेचुरल पर्सन, एब्सोल्युटली हम नेचुरल पर्सन है। दूसरे वाले है जो आप देख सकते हैं लीगल है, आर्टिफिशियल है, क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कोई यूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कोई सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप फर्म है, सो दिस इज क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पीएमसी, राधिका स्पोर्ट्स क्लब, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, विप्रो लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, टीसीएस लिमिटेड, सारी कंपनीज ये क्या है, कुछ नहीं बट आर्टिफिशियल या लीगल पर्सनल अकाउंट्स है माय डियर। और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, इसका मतलब है ग्रुप। इट इज नॉट अ सिंगल पर्सन, इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस। ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ पर्संस है।
तो इसलिए इसको ग्रुप या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स बुलाते हैं। इसमें अगर आपको इजीली क्लासिफाई करना है तो कर सकते हैं, एक है डेटर अकाउंट और दूसरा है क्रेडिटर अकाउंट। डेटर और creditor. Now who are the debtors? These are the customers to whom business has sold goods on credit basis. And who are creditors? These are the suppliers from whom business has purchased goods on credit basis. यानी जिनसे खरीदा या जिनको बेचा, इनको हम क्या बुलाते हैं? डेटर और क्रेडिटर। अब ये क्या है? These are the bunch of people to whom either business has sold or from whom business has purchased, और इनको क्या बुलाएंगे? डेटर एंड क्रेडिटर। तो ये ग्रुप प्रेजेंट या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। उसके साथ क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो देने हैं लेकिन दिए नहीं, जैसे सैलरीज है, रेंट है, कमीशन है, इंश्योरेंस है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बुला जाता है। मतलब ये बंच है। अगेन दीज आर ग्रुप ऑफ पीपल टू हुम बिजनेस हैवंट पेड फॉर वन और द अदर रीजन, इट टू बी पेड, मतलब ये लायबिलिटीज है, तो ये आउटस्टैंडिंग बोला है यहां पे इनको, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट या ग्रुप पर्सनल अकाउंट बोला है। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, मतलब आपने इनको एडवांस में पे कर दिया। जैसे कि हमने एक एग्जांपल में देखा था, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, है ना, एडवर्टाइजमेंट पेड इन एडवांस। आपने ये साल के बजाय अगले साल का भी पहले ही भर दिया। मान लीजिए आपने ट्यूशन फीस भर दिया, कॉलेज का फीस भर दिया, आपने क्लास का फीस भर दिया, अगले साल का भी भर दिया। ऐसा कोई करता नहीं है, कर दिया तो उसको प्रीपेड बताएंगे, और ऑब्वियसली इट इज अ ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसी के साथ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे आपने पे किया एडवांस में वैसे आपने रिसीव किया एडवांस में, तो वो भी पर्सनल अकाउंट या ग्रुप पर्सनल अकाउंट माना जाता है। और आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे वैसे आउटस्टैंडिंग इनकम है। सो पहला क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स याद रखिए, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तीन ही अकाउंट है बेसिकली, एक पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल। जैसे ही चार्ट खत्म होता है मैं इसका समराइज करके आपको बताऊंगा, कभी मत भूलिएंगे आप। एंड ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम वेरी यूजफुल फॉर द एंटायर अकाउंटिंग प्रोसेस। कौन सा नॉमिनल है और कौन सा पर्सनल है। तो पर्सनल अभी के लिए याद रखिए, एनी पार्टी, नेम ऑफ द पर्सन, मे बी लीगल, आर्टिफिशियल, नेचुरल, ग्रुप, इज नथिंग बट ऑलवेज अ पर्सनल अकाउंट। और इस पे लाइट में थ्रो करता हूं, जैसे ये खत्म करते हैं चार्ट। अब इधर देखिए, इम्पर्सनल अकाउंट है, सेकंड बाइफर्केशन, यानी दो ही अकाउंट का क्लासिफिकेशन है, पहला पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल। पर्सनल में नेचुरल, लीगल और ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव, और इम्पर्सनल में दो ही है, एक रियल और दूसरा नॉमिनल। तो रियल में क्या है? रियल में फिर से दो पार्ट है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। सुना सुना लगता है? यस, हमने देखा था ना, टेंजिबल, इनटेंजिबल, मतलब the assets which can be seen and touched and the assets which cannot be seen and touched, same is here my dear, और कुछ नया नहीं है, ये सेम है। टेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब क्या है? देखिए, कंप्यूटर, कैश एंड मशीनरी, मतलब द assets which can be seen and touched। इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। देखिए बेसिक काम में आ गया। रियल अकाउंट मतलब क्या है? रियल अकाउंट मतलब सिंपली, कैन आई राइट डाउन हियर? यस, दैट इज करेक्ट। रियल अकाउंट मींस ओनली असेट अकाउंट। मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं, रियल अकाउंट इज नथिंग बट असेट अकाउंट। ये सिर्फ असेट अकाउंट है, उसमें कुछ टेंजिबल है, कुछ इनटेंजिबल है, दैट डजंट मैटर, है ना। तो कभी भी याद रखिए, रियल अकाउंट आया मतलब आंखें बंद करके क्या बोलना है? ये असेट अकाउंट है। अब आगे जाके देखिए, वो टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, रूल तो एक ही है उसके लिए अप्लाई होने वाला। आगे जो है बेटा वो है नॉमिनल अकाउंट, जो आप देख सकते हैं, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। यानी स्टेशनरी वहां पे दिया है, सबसे पहला एग्जांपल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट, ऑल दीज आर एक्सपेंसेस। लॉसेस इन्होंने नहीं दिए, लॉसेस मैं आपके लिए यहां पे लिखता हूं, बिकॉज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, ऐसा इसका बाइफर्केशन है। तो लॉस का अगर मुझे बाइफर्केशन बताना है तो कौन सा ऐड कर सकता हूं मैं यहां पे? व्हाट लॉस आई कैन शो हियर इज नथिंग बट, करेक्ट, बैड डेट्स, ये लॉस है मेरे लिए। और पांचवा मैं ऐड कर सकता हूं लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, ऑब्लिक थेफ्ट, ऑब्लिक और भी कोई लॉस, जैसे कि आपका जर्नी में लॉस होता है,
तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन ट्रांजिट बोलते हैं उसको, लॉस इन ट्रांजिट, यानी ट्रांसपोर्ट टाइम कुछ गुड्स आपके अगर खराब हो गए तो ये एक्सपेंसेस और लॉसेस है। नॉमिनल अकाउंट का बाइफरकेशन हम देख रहे हैं बेटा, पहला एक्सपेंसेस लॉसेस, दूसरा है इनकम और गेन। इनकम और गेन में क्या है, इंटरेस्ट, डिस्काउंट एंड सेल्स अकाउंट। उसी के साथ कमीशन अकाउंट बोला, कमीशन रिसीव्ड बुला सकते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड बुला सकते हैं, ये सारे क्या है, इनकम एंड गेन्स। अब देखिए थोड़ा सा आसान कर देता हूं मैं इसको, कैन आई से दैट रियल अकाउंट्स आर ऑलवेज असेट अकाउंट्स। ये देखिए रियल अकाउंट्स इक्वल टू असेट्स अकाउंट, बियॉन्ड डाउट आई कैन से यस और नो, बताइए, क्योंकि या तो वो टेंजिबल असेट है या तो वो इनटेंजिबल असेट है, दूसरा कुछ है ही नहीं रियल अकाउंट में, देख सकते हैं आप। द असेट्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच्ड, द असेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, सो दैट इज रियल अकाउंट। सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट, तो इम्पर्सनल अकाउंट पहले खत्म कर लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, नॉमिनल अकाउंट में है आइदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम्स एंड गेन्स। तो ये मेरा नॉमिनल अकाउंट का कॉम्बिनेशन बन गया। यहां पे क्या बना, नॉमिनल अकाउंट्स आर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन है नॉमिनल अकाउंट का। अब देखिए पूरा क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, बचा क्या क्लासिफिकेशन में, हमारा क्लासिफिकेशन अगर देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, लायबिलिटीज, असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। तो लायबिलिटीज ही यहां पे बाकी है, असेट्स हो गए, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो गए, इनकम और गेन हो गए, बचे क्या, लायबिलिटीज। सिर्फ लायबिलिटीज बचे माय डियर। अगर लायबिलिटीज बचे तो अकाउंट भी एक ही बचा है हमारे पास। क्या अकाउंट बचा, यस दैट इज राइट, रियल और नॉमिनल तो हो गया, बचा क्या है, पर्सनल अकाउंट। सो दिस इज हाउ इट इज वेरी इजी। ये इस तरह से बड़ा आसान है बेटा समझना। तो रियल अकाउंट आंखें बंद करके असेट अकाउंट ही होते हैं, नॉमिनल अकाउंट बियॉन्ड डाउट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स। और उसी के साथ अगर आप आगे चले जाए तो ऑल लायबिलिटीज आर यूजुअली पर्सनल अकाउंट्स। तो बड़ा सिंपल है चार्ट कॉपी कीजिए और आंखें बंद करके ये याद रखिए बेटा, that all assets are always personal accounts, all expenses, losses, incomes and gains are nominal accounts and all liabilities are usually personal accounts. ये 3 फंडामेंटल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है जो आपको याद रखने हैं, बिल्कुल भूलना नहीं है। क्या रूल है, यस, all assets are real accounts, that is all assets, properties and possessions of the business are real accounts. All expenses, losses, incomes and gains of the business are nominal accounts and all liabilities of the business are personal accounts. बस यही इस चार्ट का पूरा सोल है, क्रक्स है। तो चार्ट बस कॉपी कीजिए and I hope you are enjoying this. So what we discussed today is nothing but, अभी तक हमने देखा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है, डबल एंट्री बुक कीपिंग आती कहां से है। तो हमने देखा ट्रेडिशनल सिस्टम एक होती है जिसको हम वही खाता बोलते हैं, इंडियन सिस्टम जो फॉलो नहीं करते, स्मॉल बिजनेसेस फॉलो करते हैं। उसी के साथ हमने इंग्लिश सिस्टम देखा, सिंगल और डबल एंट्री, सिंगल अनसाइंटिफिक है, डबल साइंटिफिक है। डबल के हमने कुछ प्रिंसिपल देखे और उसके साथ हमने अकाउंट का डेफिनेशन देख के अभी उसका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखा और इसका हमने कंक्लूजन क्या किया, real accounts, all expenses, losses, incomes and gains of the business are nominal accounts and all liabilities of the business are personal accounts. Hope you are enjoying this. For rest of the things, see you tomorrow. Have a wonderful time ahead. God bless you.